Yes, who doesn't want financial abundance? Me, you, everybody. Not money only, my dear friends, but financial abundance. Resources to do whatever you want in life, achieve whatever you want in life. I'm making this video especially for you, for those people who are feeling discouraged, with no hope to become financially abundant, to become financially free, financially independent, whatever it may be you want, but things are linked to money as a resource and I take that as a frequency. इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि everything is frequency. So the topic of the video is how to achieve financial abundance in this lifetime. That's right. ये लाइफ और ये टाइम आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि मोस्ट लोगों की लाइफ में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये विजुअलाइजेशन, ये चीज़ें काम नहीं करती हैं. वो गरीब पे गरीब रहते हैं. 99% people of the are not financially free. 1% people are rich. ये ऐसा क्यों? सब खेल है फ्रीक्वेंसी का, वाइब्रेशन का. यू सी, बट आई विल से दैट इट इज़ योर बर्थ राइट टू हैव फाइनेंशियल अबंडेंस. Why? All the things in the universe are made from one source, the universal mind or the universal consciousness, and that consciousness is linked to your subconscious mind, which 95% of your life it is controlled by the subconscious mind, and you are having patterns and behaviors which are repeated every day. Same behaviors, same thoughts, 70,000 thoughts per day, 86,400 seconds, every second a thought. Today I'm going to tell you how this thought and emotions arise. Science has revealed what we have been always talking about. So all things come from one source and all things are vibrating. Tesla said, Nicholas Tesla, if you want to understand the universe, then you have to understand energy, vibration and frequency. So everything is having a particular vibration and a particular frequency. No sine wave, studied in school, sine wave, wave, particle, duality of Heisenberg principle. इसके बारे में तो मैं बात कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे कर रहा है. उसको जानेंगे, पहचानेंगे और उसको शिफ्ट करेंगे आज. बट पहले जानते हैं. एक और मेरे फेवरेट है पॉल कोएल्हो. आपकी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है ना, वो ओल्ड थिंकिंग से कभी नहीं बदल सकती. People will not be able to solve the problems if they are having the same thoughts which created them. And one thing more, Paul Coelho again, people never learn by being told. They have to find out themselves. आपको अपने आप पता लगाना पड़ेगा कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आपको खुद करना पड़ेगा. People never learn by being told. They have to find out themselves. कमाल की स्टेटमेंट है. The universe is vibration. You are a vibration. I am a vibration. The brain also is a vibration. The brain vibrates in these frequencies. सबसे स्लो जो चलती है उसको बोलते हैं डेल्टा फ्रीक्वेंसी. 0.3 से लेकर और 3 हर्ट्ज तक. इसमें आपकी अवेयरनेस, स्लीप और हीलिंग होती है. उसके ऊपर चलते हैं तो आपका थीटा. इसमें होती है आपकी मेडिटेशन, इंट्यूशन और मेमोरी. और ये चलती है 4 से 7. यस, 4 से 7 हर्ट्ज. उसके ऊपर है आपकी अल्फा, वेकिंग स्टेज, रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन एंड क्रिएटिविटी भरी है इसमें. और ऊपर चलें तो हमारी ब्रेन वेव जो है वो चलती है बीटा. और ये है अलर्टनेस,
कंसंट्रेशन एंड कॉग्निशन, ये चलती है 16 से लेके और 30 हर्ट्ज तक। और उसके बाद में है गामा 31 से 100 हर्ट्ज तक। इसमें है डीप इंसाइट, डीप फोकस, पीक कॉन्शियसनेस। ये है आपका इंसाइट, फोकस और कॉन्शियसनेस एक डीपर लेवल पे। ये गामा में आपको, गामा की ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपको मिलेगा। अच्छा देखें हमारी और क्या क्या चीज़ें, हमारे बॉडी में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी जिनकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। मैं बताता हूँ आपको आज। हार्ट 60 to 70 टाइम्स अ मिनट, ब्रेथ 12 to 14 टाइम्स। आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट 12 से 14 टाइम। इस एक मिनट में एक बारी वाइब्रेट करता है। आपका स्टमक 1 मिनट में 3 बारी वाइब्रेट करता है। और आपका ब्रेन 18 से 22 साइकिल्स पर सेकंड पर करता है। इनकी अपनी ट्यून है। ये सब जब मिल जाते हैं तो एक हारमोनियस ट्यून बन जाती है और आपकी पर्सनल ट्यून, पर्सनल वाइब, करिश्मा, ये है आपकी पर्सनल वाइब्रेशन। देखिए आप अपनी वाइब्रेशन आराम से पास कर सकते हैं किसी दूसरे को। एक फोक लीजिए, उसको आप मारिए टेबल पर, वो वाइब्रेट करेगा। एक और फोक लीजिए, वाइब्रेट नहीं कर रहा है, दोनों को साथ में रखिए और पहले वाले फोक से दूसरे वाले फोक पर वाइब्रेशन पहुंच जाएगी और शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप जब विजुअलाइजेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रैक करते हैं, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे आपकी मेंटल स्क्रीन पर। तो हमारे जो इमोशंस हैं, ये सब हमारे थॉट्स और इमोशंस, ये भी वाइब्रेशन है। और जब आप कोई भी चीज़ सोचते हैं, अगर आप बीमारी के बारे में सोचते हैं, डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं, होपलेसनेस के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते हैं, तो वो एक वाइब्रेशन जो है वो यूनिवर्स में जाती है और वही उसको वापस लेके आती है। इसको बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अपनी थॉट को चेंज करना है फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ, और आपको वही अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा। इस शिफ्ट को कैसे करें? ये शिफ्ट होगा, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें एंड तक। ये शिफ्ट होगा, इमोशनल शिफ्ट भी होगा, थॉट का शिफ्ट भी होगा, आपकी प्रेजेंट जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इशू है, वो भी चेंज होगा। और पहले देखिए कि ब्रेन में एक फर्स्ट क्लास ज्योमेट्री लाने के लिए, एक ब्यूटी लाने के लिए, ग्रेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं अर्नस्ट चलैडनी। इन्होंने क्या किया, साउंड वेव्स को जो है, सैंड को रखा एक प्लेट पर और उसके ऊपर में वायलिन बजाया, साउंड वेव्स दी उसको और ब्यूटीफुल पैटर्न बन गया। बिलीव यू मी, आप ये टाइप कर सकते हैं अर्नस्ट चलैडनी और उसके एक्सपेरिमेंट को देखिए, क्या ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाता है साउंड की वजह से। सैंड बना देती है वो। और नई एक इन्वेंशन हुई है जिसमें स्टडी करते हैं हम साउंड को कि वो कैसे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको कैसे चेंज करता है। ये एक नई जॉन रीड करके एक साइंटिस्ट उन्होंने बनाया है साइनास्कोप। इससे आप वाटर पर साउंड का डिजिटल प्रिंट, यस माय डियर, वाटर की सरफेस के ऊपर में आप साउंड के थ्रू डिजिटल प्रिंट ले सकते हैं और ब्यूटीफुल प्रिंट्स बन जाते हैं। जब वाटर को थैंक्स बोलेंगे, वाटर को प्रे करेंगे, प्रेयर का साउंड अगर सुनाएंगे वाटर को, तो उसके स्ट्रक्चर में ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल पैटर्न बन जाते हैं। और अगर आप गाली देंगे, अगर आप गुस्सा करेंगे, तो वो फिर वैसा शेप नहीं बनेगा, बिल्कुल बेढंगा सा शेप बन जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, साउंड वेव्स जो है ना, हारमोनियस साउंड वेव्स अपने सेल के मेम्ब्रेन्स को दे सकते हैं। और हमारे सेल्स जो है जब बीमार हो जाते हैं, तब उनमें वो जो है पर्टिकुलर वाइब्रेशन जो है वो इतनी हारमोनियस नहीं होती है, वो रिदमेटिक नहीं होती है, वो टेढ़ी पेढ़ी हो जाती है। ये भी साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है। तो साउंड वेव्स के थ्रू हम अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं एट सेलुलर लेवल, जो मैं आजकल कर रहा हूँ। तो आपकी कॉन्शियसनेस, आपके थॉट्स और इमोशंस, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। और एक जापानीज़ साइंटिस्ट हुए हैं मसारू इमोटो, उन्होंने ये वाटर के ऊपर में जो ब्यूटीफुल पैटर्न्स हैं, ये एक किताब में इन्होंने लिखा है, बताया है, सीक्रेट लाइफ ऑफ वाटर बाय मसारू इमोटो। ये आप ज़रूर किताब अगर ले सकें, ला सकें तो पढ़ें और पता लगेगा कि साउंड वेव्स जो हम म्यूज़िक सुनते हैं, जो मेडिटेशन म्यूज़िक सुनते हैं,
और सैटरडे नाइट अगर हम किसी डिस्को में जा रहे हैं वो म्यूज़िक सुनते हैं। ये सारे म्यूज़िक जो हैं आपके सेलुलर लेवल पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं और आपको अच्छा लगता है। तो हारमोनियस थॉट्स कब पैदा होंगी? जब आप अपने आप को बढ़िया म्यूज़िक से एक्सपोज कर लेंगे और बढ़िया आपका केओस से आपकी बन जाएगी ब्यूटीफुल ज्योमेट्री बॉडी की, और माइंड स्लो डाउन हो जाएगा। माइंड स्लो डाउन हो जाएगा जेंटलमैन, आपका माइंड एकदम काम, आप काम हो जाएंगे, माइंड स्लो हो जाएगा, आपका माइंड स्लो हो जाएगा, आप काम हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और एक स्टेडी रिदम आपके बॉडी में चलती रहेगी। है ना कमाल की बात? जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज है ना, म्यूज़िक सुनने से ही दूर हो जाएंगे। मेडिटेशन क्यों करते हैं? मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर हार्मोनियस रिदम में आ जाएं और आप एक आपकी वाइब्रेशन कोहेरेंट हो जाए और आप पावरफुल बन जाए। किसी कहते हैं नहीं इसमें, इस इंसान में बहुत करिश्मा है, वो एक पर्सनल वाइब्रेशन है उसकी, और ऐसी वाइब्रेशन आप भी बना सकते हैं। अगर आपने फाइनेंशियल अबंडेंस को चाहिए तो आपकी इमोशनल जो आपके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको आप शिफ्ट कीजिए। आप विजुअलाइजेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कीजिए, और वो थिंकिंग जिससे आपकी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी, वो थिंकिंग को चेंज कीजिए। और आप विजुअलाइजेशन करेंगे, मैटर इज़ ओनली एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग इज़ हियर। ट्यून करना है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो सब चीज़ें हैं, वो फाइनेंशियल अबंडेंस है। आपको सिर्फ उस रेडियो स्टेशन को ट्यून करना है, उस सेलफोन को का नंबर लगाना है जिस सेलफोन से आप बात कर पाएँ। तो आप फ्रीक्वेंसी पर तब पहुंच पाएंगे तब जब आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स और थॉट्स को विजुअलाइजेशन के थ्रू, आई एम अबंडेंट फाइनेंशियली अबंडेंट, आई एम अबंडेंट फाइनेंशियली अबंडेंट एंड आई इट इज़ माई बर्थ राइट टू बी फाइनेंशियली अबंडेंट। आप विजुअलाइजेशन करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में लाएं, अपने थॉट्स को चेंज करें, आपकी जो वर्ल्ड है उसकी जो परसेप्शन है आपकी वो भी चेंज हो जाएगी और आप फाइनेंशियली अबंडेंस हो सकते हैं। तो जेंटलमैन, उठाइए आज अपना पेन और निकालिए अपना जर्नल और लिख डालिए कि क्या आप आज फाइनेंशियली अबंडेंस होना चाहते हैं। तो आज ही इस वीडियो को दोबारा देखें और फॉलो करें मुझे। आपके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।